مطلب تم تو اللہ کے قانون کے حساب کے خلاف ورزی کر رہے ہو, تم کیوں ہاں تو بچاؤ گے؟ اللہ مجھے، میں تو بچاؤں گا، اللہ جو مجھے سزا دیں گے میں اس کو بھگت لوں گا بس. جی قریشی صاحب کیا حال چال ہے؟ آج کل کافی ایکٹیو ہو چکے آپ. ہاں ایکٹیو تو بہت ہیں. جی جناب, آج کا ٹاپک کیا مرتدوں کو نارمل زندگی گزارنے کا حق ہے نہیں ہے؟ ہے نا بھائی. بالکل نارمل. ارے بھائی پھر وہیں سے شروع کرو گے, جتنے لوگوں کو ابھی اٹھا کے پٹکا ہے آپ نے, وہی میرے کو بھی پٹکنے کا ارادہ ہے. ارے واہ, ارے یہ بھاری تھا یار پرویز قریشی بھائی کا, جتنے لوگوں کو اٹھا کے پٹکا ہے. ان سے میں تو کہہ رہا ہوں ٹاپک پہ بات ہی نہیں کریں, کچھ اور ہی بات کر لیں. حضرت علی کو بھی تم نے لپیٹ لیا اور یہ بھی کر دیا, کیا کیا کر دیا. تو یہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہے نا. تم انسان ہو کہ نہیں دیکھو انہوں نے کیا, آپ سنو, جو انہوں نے کیا وہ اس زمانے کی بات ہے, جو کیا ٹھیک ہے. ہم کو یہ حکم دیا گیا کیا آج اسلامک لا میں کہیں لکھا ہے کیا کہ جو مرتد ہو جائے اس کو تم مار دو؟ ایسا آپ بتاؤ. یہ کیا ہے, یہ حدیث کیا ہے؟ یہ نہیں اسلامک میں لا ابو نہیں ہے تو حنیفہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتا میں. ابو حنیفہ نہیں, میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا حدیث یہ بتا رہی ہے نا کہ اس ٹائم وہ فلاں تھا اس کو مار دیا گیا, نہیں ایسا اس بتائے کی گا. بات نہیں کر رہی ہے. ہاں اس بولیے. ٹائم سنو نا پرویز بھائی, پہلے تو یہ بولو آپ کہ اگر حق میرے خلاف بھی ہوگا تو میں ہاں حق کا ساتھ دوں گا, پہلے یہ بولو. بھائی اسلام ہمارے خلاف ہوگا ہی نہیں, حق کے خلاف ارے کیوں میں ہوگا؟ سنو نا, میں یہ ابھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ ہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بولو کہ حق اگر میرے خلاف بھی ہوگا تو میں حق کا ساتھ دوں گا. بے شک اسلام میں کچھ بھی اگر حق ہوگا اور میرے خلاف ارے ہوگا پھر تو اسلام میں آ گئے میرے بھائی, صرف اتنا بولو کہ ہاں. حق میرے خلاف بھی ہوگا تو میں حق کا ساتھ دوں گا. حق اگر میرے خلاف بھی ہوگا تو میں حق کا ساتھ دوں گا. بہت شکریہ, اب اس بات پہ قائم رہنا, ٹھیک ہے؟ ہاں 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 پرویز بھائی دیکھو, رسول اللہ نے جو حدیث میں یہ کہا ہے کہ جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو, انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ 1400 سال پہلے کے لیے ہے یا صرف میرے زمانے کے لیے ہے یا یہ اس کی یہ کنڈیشن ہے. انہوں نے بلینکٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی جس نے اسلام چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. ہاں اسی تو کو بتائیے, بنیاد بنا کر حدیث پڑھ کے بتائیے. چلو یہ ہوئی نا کچھ بات, حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے. یار میرا وہ کدھر ہے, وہ ایک منٹ رکو, میرے کو دیکھنے تو پہلے وہ اچھا امیت نے شیئر کر دیا. نہیں یہ والی نہیں امیت, ایک منٹ رکو میں شیئر کرتا ہوں, اس میں سب ہے, بہت ساری حدیثیں. ہاں چلو آگے. حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے. ہاں بھائی یہ دیکھو, ایک منٹ, یہ دیکھیے بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنا دین بدل دیا اسے قتل کر دو. بس اتنی سی حدیث ہے, بس جنرل سٹیٹمنٹ. اور دیکھو یہاں پہ بھی ہے. ایک میں ایسے نہیں حدیث نمبر بتائیے نا پڑھ کے. ہاں لو نا بھائی, لو نا, لو ہاں باقاعدہ لکھتے پورا. جاؤ. سنن النسائی 4061. جو آپ پڑھیے اس کا نمبر بتائیے بس بھائی پلیز. ہاں میں بتا رہا ہوں, پہلے لکھو سنن النسائی. ہاں ہاں رکو, میں سٹارٹنگ کہاں سے ہوتا ہے وہاں سے بتاتا ہوں تم کو, رکو.
चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सीक्वेंस लिखने में आसानी हो जाए. लिखो सुनन नसाई 4059 हाँ, सुनन नसई कॉमा 4059 कॉमा कॉमा 4061 4061 जी कॉमा 4062 कॉमा साहिल भाई इनको कुरान की आयतें 4062 दे दे दो. हाँ ये पहले हदीस का तो दे दूं. 4063 जी जी 4063 4064 4064 सही बुखारी 6922 सही बुखारी 6922 जी जामे तिरमिजी 1458 जामे तिर्मिजी 15 क्या बोला था यार? 1588 1458 बोला था. 1458 1458 जी हाँ. सुनन अबी दाऊद 4356 सुनन अबी दाऊद 4356 बस भाई इतना काफी है. आप इसका बताइए अभी हदीस पढ़ के बताइए. अच्छा साहिल भाई ये कुरान की आयत देखिए जरा 489. 4 की 8-9 क्या लिखी है? They wish that you should disbelieve as they have disbelieved and thus you become all alike. So do not take friends from among them unless they migrate in the way of Allah. Then if they turn away, seize them and kill them wherever you find them. And do not take from among them a friend or helper. हाँ जिसने जिसने कुफर किया ठीक है तो उसको जो है वो और वो चाहते हैं कि तुम भी कुफर करे तो अल्लाह कहता है कि ऐसे लोगों को छोड़ो मत पकड़ के मार दो है ना. तो ये है. और हदीस में तो रसूलुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि जिसने छोड़ दिया अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो. और इसी को बुनियाद बनाकर हजरत अली ने और हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं उस तरीके से ये जो मुआज है इन्होंने भी लोगों को मरवाया है. और इसी पैटर्न को फॉलो करके जो आइम्माए दीन है इमाम मुज्तहिदीन है उन्होंने भी यही फतवा दिया है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो. अब बताओ मेरे भाई परवेज भाई कि आपने तो कहा था कि बिल्कुल जीने का हक है लेकिन आपके रसूलुल्लाह आपके सहाबा आपके इमाम मुज्तहिदीन ये सारे बोलते हैं कि उसको मार देना चाहिए. आपकी सोच अच्छी या आपके रसूलुल्लाह और सहाबा की सोच अच्छी? सर आपने जो अभी आपने जो हदीसे जो नंबर दिए मुझको हाँ वो आपने पढ़ के नहीं सुनाया कोई भी हदीस मेरे को. अरे पढ़ाना भाई ये क्या अरे क्या इंसान है यार. ये लो पढ़ देता हूँ. सॉरी चलो ये पढ़ देता हूँ. ये देखो इसमें उर्दू में ही पढ़ देता हूँ. जी उर्दू में पढ़ देता हूँ. जो अबू दाऊद का मैंने हवाला दिया था सुनन अबी दाऊद का 4356 उसमें क्या लिखा है पढ़ देता हूँ. 4356 अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स को लेकर आया गया जो इस्लाम से मुर्तद हो गया था जी 20 दिन तक या इसके लगभग वो इसे इस्लाम की दावत देते रहे कि इसी दौरान मुआज रदी अल्लाह अन्हु आ गए तो आपने भी इसे इस्लाम की दावत दी लेकिन इसने इनकार कर दिया तो आपने इसकी गर्दन मारी. ये देखिए साहिल भाई बोलूं मैं ये हो गया वाकया. आप ऐसी हदीस बताइए जिसमें हुक्म दिया है. आपने एक रसूलुल्लाह की हदीस बताई ना छोटी सी हदीस बताई थी जिसमें उन्होंने बोला कि मार दो. मेरे भाई टेंशन नहीं लेना. मार दो की हदीस बताइए खाली मार दो की हदीस. हाँ मेरे भाई टेंशन न को लो मैं बताता हूँ तुमको. हाँ बोलो मेरा भाई टेंशन नहीं लेने का. ये देखो सुनन नसाई 4064 इट वॉज नरेटेड फ्रॉम अनस. अनस से ये रिवायत है. इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल हाँ इसका उर्दू नहीं है इसमें ये इंग्लिश है. अच्छा चलिए आराम से पढ़िए. समझ नहीं आती है? आती है लेकिन स्लोली पढ़ेंगे तो समझ जाऊंगा. ओके. इब्ने अब्बास said the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said whoever changes his religion kill him. Yes. अच्छा kill him.
Yes, kill him. अच्छा, तो ये एक अच्छा हदीस के हिसाब करोगे से कि आगे डायरेक्ट भी हुक्म आ बोलोगे? गया जी। अच्छा करोगे कि आगे भी बोलोगे? आगे मतलब आपने बता दिया कि डायरेक्ट ये हुक्म आया है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ, तरफ से डायरेक्ट हुक्म आया है ओके। हदीस में। हाँ, आपने हदीस में, हम्म, हदीस से साबित किया आपने। हाँ, तो अभी जिस तरह से, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आपको बोलना है। हाँ, मुझे ही बोलना है। तो मैं जो आपसे थोड़ी देर पहले एक बेचारे बात कर रहे थे, वो जब उन्होंने बोला कि ये लॉ इस्लामिक शरिया जहाँ पे है वहां पे लागू होता है, ठीक है, ये मैं बात थोड़ी सही देर के लिए तुम्हारी बात, हाँ परवेज भाई, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हालांकि हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये कोई किधर नहीं कहा है कि सिर्फ इस्लामिक लॉ में ये फॉलो होगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे उस बात पे बहस नहीं करना है। आपको आपको हाँ मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है ना एक लॉ है। जैसे एक देश का लॉ होता है ना, ये तो पूरी दुनिया के ठीक लिए ठीक इस्लाम एक है लॉ भाई, है, इसलिए उसको इस ठीक, कॉन्टेक्स्ट में मानना पड़ेगा। आगे चलिए। परवेज भाई ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इस्लामिक जहाँ पे शरिया होगा वहां पे ये जी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आप बिल्कुल। अभी ये बताए, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि मुर्तद को जीने का हक है। अब वो इस्लामिक शरिया वाले देश में आ जाए तो क्या अब उसको जीने का हक नहीं है? वो देश के लॉ के खिलाफ गया ना सर। तो अब उसको जीने एक का हक देश नहीं है के, ना? बिल्कुल नहीं है अच्छा, आपकी बीवी अगर वो। इस्लाम छोड़ दे तो उसको भी जीने का हक नहीं है ना, इस्लाम छोड़ दे तो? इस्लामिक शरीयत के लॉ में अगर रह रही है तो हाँ, तो तो मैं उसको भी मजबूर जीने हूं का ना। हक नहीं है। तो वो और वो बच्चे वो भी। गवर्नमेंट। हेलो हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ बच्चे भी छोड़ दें अगर, ये भी ऐड कर दिएगा। ये कौन? अच्छा, तब परवेज भाई, आपका एक हाँ 18 साल का एक लड़का है और आपकी हाँ। बीवी, ठीक है, एकलौता बेटा है आपका 18 साल का, अरे और हाँ, आपकी बीवी, स्टोरी मैं दोनों सब ने समझ इस्लाम गया छोड़ दिया। भाई। हाँ, मैं स्टोरी नहीं, समझ सुनो गया सुनो, जहाँ। ओ भाई सुनो, सुनो हाँ, मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है, लोगों को भी समझने आप दो। एकदम आपका एक एकदम 18 साल इमोशनल, का लड़का है। अरे एकदम सुनो इमोशनल तो बना के सही। लाओ, पूरा इमोशनल बना के लाओ। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, इमोशनल बना के बैंड बजाते हैं हम। जी हाँ, तो जी जी, आपका 18 साल का लड़का है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, एक ही बच्चा बिल्कुल है, सर से, और आपकी बिल्कुल बीवी, सर से। जी दोनों ने इस्लाम छोड़ दिया, जी ठीक है। अब वो जी इस्लामिक मुमाल हाँ, ऐसी जगह पे है जहाँ पे इस्लामिक शरिया है और ये अल्लाह के रसूल की जो बात है वहाँ एप्लीकेबल होती है। जी। तो आपका बेटा और आपकी बीवी, हाँ ये हाँ दोनों को मार देना चाहिए ना? भाई, देखिए जिस दिन गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ जाएगा, वो लोग तो वैसे भी मार, मैं बचाऊंगा उनको तो भी। नहीं नहीं, तुम क्यों बचाओगे? तुम बचाओगे मतलब तुम तो अल्लाह के कानून के हिसाब के खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुम क्यों हाँ, तो वो बचाओगे? अल्लाह मुझे, मैं तो बचाऊंगा। अल्लाह अल्लाह जो मुझे सजा देंगे मैं उसको भुगत लूंगा बस। अच्छा, मेरे मतलब भी तुम खिलाफ वर्जी करोगे अल्लाह के कानून की? अब इंसान इंसान खताकार है। अल्लाह कुरान में फरमाया इंसान नहीं नहीं, खताकार है। खता तो जानबूझ के खता नहीं होती ना भाई, मैं खता तो जानबूझ के जानबूझ थोड़ी के, ना होती। मैं वो खता जानबूझ के कर लूंगा। अल्लाह को जो सजा देना होगा मुझे दे देंगे बस। अच्छा, चलो भाई, बीवी ये बच्चे को मैं बेचारे बचा जो है, लूंगा। बेचारे परवेश भाई। आप अच्छा, क्यों जा रहे तो हो वैसे लेकिन अल्लाह के खिलाफ? आप वैसे आप सच्चे मुसलमान ही नहीं हो अगर आपको अपने अल्लाह से और उसके मोहम्मद से, अगर जब तक आपको अपने बीवी बच्चे से बढ़ के प्यार ना हो जाए, आप सच्चे हाँ, मुसलमान ही नहीं हो। तो आप अपने बच्चों का क्यों साथ दे रहे हो वहां पे? आपको एक्चुअली कौन मोहम्मद और उसके कौन अल्लाह का है साथ देना चाहिए। कौन कौन सच्चा मुसलमान है आज की डेट में? बताओ आप, कौन है सच्चा आपकी मुसलमान? बात हो रही है फिलहाल, अभी मैं 1 पॉइंट हाँ, कुछ मैं बिलियन भी नहीं मुसलमानों हूँ। की मैं बात नहीं कहाँ कर हूँ? रहा भाई। मैं भी सच्चा मुसलमान कहाँ हूँ भाई? मैं कहाँ फॉलो करता हूँ इस्लाम अच्छा को? अच्छा, मैं ना मैं इसको सही से सेट करता हूँ, मैं इसको सेट करता हूँ परवेश भाई, मैं सेट इसको सेट करो आज, करता हूँ, जितना देखो। जितना सेट करना कर लो आज। हाँ, हाँ, आज नहीं एक तो फंसा होता पाओगे। है कि जैसा चोरी करना गुनाह है, जी ठीक है, लेकिन मैं चोरी कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको गुनाह समझ के ही गुनाह कर रहा हूं, जी ठीक है। मतलब मैं उसको गलत समझ रहा हूं,
चोरी को, जी और मैं जी कर रहा हूँ, ठीक है। जी अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कानून को आप सही समझकर गुनाह कर रहे हैं या कानून को गलत समझकर आप गुनाह कर रहे हैं? हाँ, अब आए सही पॉइंट पे। मैं उस कानून को तो सही मान रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में बीवी बच्चों के लिए प्यार है, इसलिए मैं उनको बचाऊंगा। नहीं, कानून तो सही है। आपने भाई बीवी नहीं बच्चों होना से चाहिए, नहीं होना चाहिए हाँ, आपके दिल में बीवी अपने बच्चों बच्चों से का प्यार। प्यार को आपने इस्लाम से ज्यादा तरजीह दी। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ मैं गुनाह कर रहा हूँ, मुझे सजा मिल जाएगी उसकी, अल्लाह के यहाँ। तो ये मजहब आपको कैसा है बीवी कि बच्चों जिसमें अपने से बीवी बच्चों से प्यार करना गुनाह हो? हाँ, अरे भाई, आप बात को घुमा, आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैं साहिल भाई अच्छा से बात ठीक है, कर रहा हूँ, ओके, एक और आदमी साहिल बात भाई आप करे। बात कर लो, मुझे जवाब मिल हाँ, गया, थैंक तो यू। परवेज भाई देखो, जी। आप बोलो या नहीं बोलो, कहीं ना कहीं लोगों के सामने आपने ये जाहिर कर दिया कि आप इस इस्लामिक कानून को सही नहीं समझते अपने नहीं नहीं बीवी नहीं, बच्चों के लिए। मैं उसको सही समझता हूँ, बोल तो रहा हूँ, मैं उसको सही जान करके फिर भी मैं वो गलती कर रहा हूँ। अच्छा, सही जान के कैसा गलती होती है यार? मतलब कानून सही है, लेकिन मुझे मेरी बीवी बच्चों से प्यार है, इसलिए बचा रहा हूँ उनको मैं। अच्छा, तो लेकिन आपके हिसाब से वो कानून सही है, मतलब आपके बीवी बच्चों को जो सजा मिल रही है वो एकदम परफेक्ट है। इस्लामिक लॉ में रह रहे हैं तो हाँ, तो परफेक्ट है एकदम। हाँ, परफेक्ट है। अरे यार, अपने देश के अच्छा लॉ को नहीं माने, अपने देश के लॉ अच्छा को अच्छा, नहीं एक माने मिनट एक भाई मिनट साहब। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, आप ये भी कह रहे हो कि इस्लाम में वन वे ट्रैफिक है, आप अगर आ गए उसमें तो बाहर नहीं निकल सकते। इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है मुसलमानों के लिए। देखिए, अभी इसके बारे में अभी डीप में जाना पड़ेगा। ऐसा है कि एक आदमी मुर्तद हो गया, ठीक है। हम्म। अब मुर्तद होने के बाद अगर वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोपेगेंडा कर नहीं रहा ना, है, चिल्ला खामोशी रहा है, नहीं, उसने बता दिया मैं नहीं मानता हूं, खत्म। हाँ, तो इसका मतलब तो है ना कि वो फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेंडा। रिलीजन नहीं है ना उसके लिए, इस्लामिक हाँ, तो कानून में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। इस्लामिक कानून जो है ना, वो एक देश के लॉ की कानून है। हाँ भाई, वो देश का लॉ मैं समझ गया, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है ना। अब इस पे मैं कैसे बहस करूं, मुझे बहुत डिटेल तो नहीं मालूम। फ्रीडम ऑफ अरे लॉ सीधी सी मतलब। बात है, नहीं है, तभी तो उसको मारा जा रहा है। अगर फ्रीडम हाँ ऑफ रिलीजन होता तो उसको आजादी हाँ होती हाँ इस्लाम को छोड़ने की। हाँ, बराबर, सही बात है। हाँ, फ्रीडम ऑफ लॉ नहीं क्या है, यार। सही है। हाँ, ठीक है, हाँ, नहीं है। तो गाइस आप देखिए, इस्लाम में हमारे मोमिन भाई ने कंफर्म किया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। एक इंसान को ये हक नहीं है कि वो अपना मजहब चूज कर सके। इस्लाम में मुसलमानों के नजदीक भी अगर उनका बेटा ही क्यों ना हो, उसकी बीवी ही क्यों ना हो, एकलौता बेटा, अगर वो इस्लाम छोड़ दे तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। और हमारे परवेज भाई जैसे मुसलमान